वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद मेट्रो का नाम जयपाल रेड्डी के नाम पर रखा जा सकता है। उन्होंने ताहम पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक़ बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल के कविता के बयान पर एतराज़ किया। कविता ने कहा है कि जहां पॉलिसी है वहां फंड्स भी फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने फ़ीस बाज़ अदायगी का मसला उठाया और कहा कि फ़ीस बाज़ अदायगी के वाजिबात अदा किए जाने चाहिए, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक के माहाना बुनियाद पर फ़ीस बाज़ अदायगी के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाएंगे। చూస్తున్నా గచ్చిబౌలిలో భూమి మీరు ఏం చేయొద్దని అధ్యక్ష దాదాపుగా 25 సంవత్సరాలు అనుకుంటా 25 సంవత్సరాల క్రితం బిల్లీరావు అనే వ్యక్తికి ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తికి ప్రైవేట్ సంస్థకు ఆ భూమి కేటాయించారు 25 సంవత్సరాల నుంచి ఏ రోజు కూడా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ దగ్గర భూమి లేదు తెలంగాణ ఉన్న కంబైన్డ్ రాష్ట్రంలో 2006లో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రద్దు చేసింది ఆ కేటాయింపు అక్కడి నుంచి కోర్టు కేసులు జరిగినాయి 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే 2024 వరకు 10 సంవత్సరాలు గత ప్రభుత్వం బిల్లీరావు నుంచి భూమి గుంజుకోలేదు అధ్యక్ష నేను వచ్చినెంబడే సుప్రీం కోర్టు వరకు వెళ్ళి కొట్లాడి ఒక ప్రైవేట్ కు ఐఎంజీ భారత్ అని ఒక ఫేక్ కంపెనీకి కేటాయించిందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న భూమిని సుప్రీం కోర్టులో కూడా కేసు గెలిచి ఆ భూమిని వెనక్కి తీసుకొని ఆ భూమిని ఈ రోజు మనం అభివృద్ధిలో భాగంగా టీజీఐఐసి కేటాయించి అక్కడ ఐటీ కంపెనీలు ఇతర పరిశ్రమలు రావడానికి అవసరమైన లేఅవుట్ చేయండి అని చెప్పి ఈ రోజు ఒక అభివృద్ధి కోసము ఒక కాంక్రీట్ ప్రపోజల్ తో ముందుకు వస్తే ఈ రోజు అక్కడ ఏదో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉన్నట్టు రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో అత్యంత ఏమంటారు జీవరాశులు ఉన్నట్టు జింకలు పులులు సింహాలన్నీ ఆన్నే भद्राचलम वाक़े के बाद बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने अपने हलक़े में गैर मजाज तामीरात का मसला उठाया। हाल ही में भद्राचलम में पेश आए वाक़े के बाद गोशामेल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपने हलक़े में गैर मजाज तामीरात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुक्काम से बढ़ती हुई गैर मजाज तामीरात पर सवाल उठाया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ఇప్పుడే భద్రాచలంలో ఒక 5 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ పడిపోయింది అది టోటల్గా ఇల్లీగల్ ఉండే G+2 పర్మిషన్ ఉండే మిగతా 3 ఫ్లోర్లు ఇల్లీగల్ ఉండే అది పడిపోయింది దాదాపు 6 మంది ఆ బిల్డింగ్ కింద లేబర్లు ఉండొచ్చు ఎవరు ఉండొచ్చు కానీ పాపం వాళ్ళు ఆ బిల్డింగ్ కింద వచ్చి చనిపోయినారని తెలుస్తుంది అట్లాంటి అక్రమ నిర్మాణాలు భద్రాచలం కాకుండా ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో అట్లాంటి ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్లు జరుగుతున్నాయి నా నియోజకవర్గంలో కూడా చాలా వరకు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది లోకల్ వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు మా కార్పొరేటర్ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు నేను రైటింగ్ అని కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన చాలా వరకు బిల్డర్లు తక్కువ రేట్లో ల్యాండ్ తీసుకొని ఒక G+2 G+3 G+4 పర్మిషన్ తీసుకొని టోటల్గా డీవియేషన్ చేసుకుంటా 5 ఫ్లోరు 10 ఫ్లోర్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసి మొత్తం ఫ్లాట్లు అమ్ముతున్నారు షాప్లు అమ్ముతున్నారు మా హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఒక కరప్షన్ కి అడ్డా తయారైపోయింది కమిషనర్ కి కానీ జోనల్ కమిషనర్ కి కానీ సిసిపికి కానీ ఎన్నోసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం సార్ ఈ విధంగా ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది దీన్ని ఆపండి అంటే నో రెస్పాన్స్ అదే సిసిపి లెవెల్లో ఇస్తే కూడా సిసిపికి याखुदपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नाले के कामों के मसले को उठाया। उन्होंने असम्बली में नाले के ज़ेर इल्तिवा कामों, नाले से कीचड़ की सफाई और GHMC के प्रोजेक्ट्स का मसला उठाया। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर ये काम बारिश से पहले मुकम्मल नहीं किए गए तो हल्का याखुदपुरा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शहर हैदराबाद के GHMC के ऊपर है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याखुदपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, जहां पर एक गंगानगर नाले का काम चल रहा है पिछले 3 साल से सर। मैंने खास तौर से हमारे कमिश्नर इलम भर्ती साहब को लेकर जाके विजिट कराया। उन्होंने खुद देखा कि वहां पे काम जो हो रहा है वहां पे जितने अतराफ में घर है चलना मुश्किल है सर।
तो वो जो काम स्लो चल रहा तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर फास्ट काम करेगा और रेनी सीजन से पहले कंप्लीट कर देगा सर, तो उसको बिल जल्द से जल्द रिलीज कर दिया तो काम फास्ट करेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया, मगर अभी कुछ दिन से, एक हफ्ते से कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि मैं काम रोक दूंगा सर, मुझे बिल नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि बैंक से लोन दिला देंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि सर आप कुछ भी करें, हमारा काम कराइए, हमको कोई उसमें ये नहीं है कि भाई उसको बिल दे या नहीं दे, मगर रेनी सीजन से पहले अगर ये काम नहीं होगा तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी आएगी तो वो गरीब लोकेलिटी के लोगों को परेशानी आएगी सर। उसके साथ साथ मेरे पास एक मुर्गी नाला का भी काम चल रहा है सर, उसको भी तेजी लाना जरूरी है सर। इसके अलावा हमारे जितने ओल्ड सिटी के नाले हैं, उस नालों के जहां जहां काम हो रहा उसको भी करवाना सर, और डीसिल्टिंग भी है वो जरूरी है सर। आने वाला रेनी सीजन है सर, अगर प्रॉपर डीसिल्टिंग नहीं होंगी तो आप जानते हैं आज से 4 साल पहले शहर हैदराबाद में बारिश हुई तो पूरे के पूरे बोट चलना शुरू हो गए सर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कुछ दिन पहले बारिश हुई सर, कुछ दिन पहले बारिश हुई तो आपने देखा कि शहर की हालत खराब हो गई आधा घंटे की बारिश के अंदर। तो आप कने ये बारिश के लिए आप अगर अम्बेडकर के तवीरुल क़ामत मुजस्सिमे के लाइट्स को खोलकर वहां पर सफाई का काम अंजाम दिया गया। कबलजी अपोजिशन बीआरएस ने इस मसले को उठाते हुए कहा था कि अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर उफल डाल दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत फौरी हरकत में आ गई। टोली चौकी में रमज़ान की रौनक देखी जा रही है। पहले ये फूडीज़ की जन्नत थी, लेकिन अब शॉपिंग का मरकज़ बन गया है। बाज़ारों में चमकती रोशनी और रंग बिरंगे कपड़ों की बहार देखी जा रही है। लजीज हलीम कबाब के बगैर रमज़ान का मज़ा अधूरा है। ईद की तैयारियों में अवाम का हुजूम, चूड़ियों, मेहंदियों और जूतों की धूम देखी जा रही है। रात भर चहल पहल, इफ्तार से सहरी तक रौनकें उरूज पर नजर आ रही हैं। मजलिस की जानिब से याकूतपुरा के रन बाजार डिवीज़न में मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सैयद मुश्ताक अहमद के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। यूनाइटेड फूले फ्रंट तेलंगाना जागृति कायदीन और बीसी तंजीमों के कायदीन के साथ बीआरएस के रुकन काउंसिल के कविता ने स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात की। कविता ने असम्बली के अहाते में महात्मा ज्योतिराव फूले का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए याददाश्त पेश की। उन्होंने दरख्वास्त की कि यह मुजस्सिमा 11 अप्रैल को फूले जयंती से पहले नस्ब किया जाना चाहिए। स्पीकर से मुलाकात करने वालों में बीआरएस एमएलएस और दीगर शामिल थे। आगरा में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रामजी लाल की क़यामगाह के करीब गुंडागर्दी की गई। हुजूम ने रुकने पार्लियामेंट की क़यामगाह के बाहर तोड़फोड़ की। इस वाक़े पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर ये तमाशाई मुसलमान होते तो बीजेपी की योगी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होता। लाठीचार्ज, फायरिंग, गिरफ्तारी, फिर गद्दारी का मुकदमा, सरकारी मुलाजिम पर हमला, बुलडोज़र एक्शन और शाम 6 बजे और 9 बजे के नाम निहाद कौम परस्त उन्हें मुसलमान बादशाह के एजेंट करार देते, मगर माशाअल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। भद्राचलम में ज़ेर तामीर 6 मंजिला इमारत के मुनद्दिम होने के वाक़े में राहत कार्रवाई के दौरान बचाए गए एक मजदूर की इलाज के दौरान दवाखाने में मौत हो गई। सुपर बाजार सेंटर में वाक़ ये 5 मंजिला इमारत मुबैना तौर पर तामीराती नुक्स की वजह से मुनहदम हो गई। इसके मलबे के नीचे 2 अफराद के दबे होने का खदशा ज़ाहिर किया गया। NDRF और फायर डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की ताकि फंसे हुए मजदूरों को निकाला जा सके। इमदादी टीम ने कामेश्वर राव को ग्राउंड फ्लोर पर देखा और तकरीबन रात 2:30 बजे मलबे से निकालकर फौरी एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। नलगुंडा के नकरिकल में पेश आए 10वीं जमात के पर्चा अफशा होने के मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 10वीं जमात की तालिबा झांसी लक्ष्मी ने इस मामले पर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार झांसी लक्ष्मी ने शिकायत की कि पर्चा लीक होने के वाक़े में उसे जिम्मेदार ठहराकर महकमा तालीमात के हुक्काम ने उसे डीबार कर दिया है। इसने अदालत से ख्वाहिश की कि इसका डीबार ख़त्म किया जाए और इसे इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी जाए। झांसी लक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में महकमा तालीमात के सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी, नलगुंडा के DEO, MEO और नकरिकल इम्तिहानी मरकज़ के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया है।
याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुजफ्फर हुसैन संतोष नगर कारपोरेटर के साथ दावत इफ्तार में शिरकत की। ये दावत इफ्तार जवाद सूफी की जानिब से खलंदर नगर में दी गई थी। साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि 10वीं जमात के पर्चा लीक मामले से तवज्जो हटाने के लिए BRS कायद KTR पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करके ये घटिया हरकत की गई है। ये हुकूमत इतनी नाकाम है कि 10वीं जमात के इम्तिहान तक सही तरीके से मुनक़िद नहीं करवा सकती। हुकूमत बच्चों के मुस्तक़बिल से खेल रही है। नकरीकल में KT रामाराव के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा बेबुनियाद और घटिया है। ये मुकदमा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर दर्ज किया गया है। रियासत में मुसलसिल चौथी मरतबा 10वीं जमात के पर्चा लीक होने की इत्तला मिली है। 4 दिनों में बताया जाता है कि चौथी मरतबा पर्चा लीक हुआ है। जुक्कल में 10वीं जमात के रियाजी के पर्चे के लीक होने के मामले के सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कबलजी नकरीकल, मंचरियाल और विकाराबाद में पर्चे लीक होने की इत्तलात मिली थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।